अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है भूल गई। मैं हूँ फायजा करीम। हम उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश खुर्रम होंगे और हमेशा की तरह खुश खुर्रम रहिए। So, आज की हमारी वीडियो है मेरे फेवरेट पर्सन से रिलेटेड। मैं वेट नहीं कर सकती आपके ब्लूपर्स का। आज की हमारी वीडियो है हमारे मैं हूँ फायजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुशो खुर्रम होंगे। तो चलिए हमेशा की तरह खुशो खुर्रम रहिए। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से रिलेटेड जो मेरे फेवरेट हैं, एस जे शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है, ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है डॉक्टर एस जे शंकर, रीजन बिहाइंड हिज मेगा सक्सेस, जर्मन एम्बेसडर। Your friends are scrolling through short content, but you, my friend, you're here to learn. Welcome to TRS Clips. Have you met Dr. Jaishankar? Yes, I have. Okay. Many occasions, yeah. Many occasions. Yeah. So you have a fair understanding of who he is and how he is as a person. Yeah. The Indian internet, especially the audiences that consume geopolitical content, are huge fanboys and fangirls. I would count myself in this fan group. Why do you say that? Because he's a very smart man. Very smart. You see, he's a diplomat, a very seasoned diplomat. He has been in many diplomatic postings. And I myself, when I served in Washington, D.C., I met him there as the Indian ambassador to Washington. But now he has a political side to it. So he has both the diplomatic experience and the skills, and he's also a politician. And that's a very good combination for foreign policy. And let me tell you, I think the way he words and expresses Indian foreign policy is masterful. Because he's a very good communicator, as many Indians are. And he's very funny and witty. He can be very sort of eloquent and extremely, he plays with words. And at the same time, he's sharp as a razor. I mean, he's really, really good. It's a pleasure to converse with him. Pleasure to converse with him. I think India can be proud of this foreign minister. Yeah. You said that he's got both diplomat skills as well as political skills. I'd actually like for you to break that down a little bit because not too many people in India, honestly, at least in Mumbai, which is like an extremely capitalistic city, not too many people I know have even tried becoming diplomats. I won't say the same for, say, Delhi or another part of India, but what do diplomat skills entail versus what do political skills entail? So I think what's the skills of a diplomat? I think the diplomat should be able to communicate with everybody on the planet, basically, whether you are in Papua New Guinea or in Alaska or in Sweden or in Malawi. You should really be able to find a way of conversation. And then a second thing that a diplomat should know is, how to defend the interests of your country so that your counterpart or the counterpart in the country understands what you want. So how to make, let's say, our requirements, our requests, our ideas palpable for the other. So it's an intercultural communication skill that diplomats must have. You have to see how others will react, how to make your points in a way that the others understand them and take them up. Okay. Sometimes it's very difficult. For example, let's say we have extremely complicated relations with Russia right now for obvious reasons. How do you get through to the Russian side, which is basically very hostile when it comes to Germany right now for obvious reasons? But this is diplomatic skill. So how do you maneuver yourself in a communication-wise to your counterpart, make him understand what you want from him? That's diplomatic skill. A politician, on the other side, needs to take decisions. Decisions must be taken. He will clearly decide on how foreign policy will be shaped or which priorities in foreign policy are there. I mean, this is not only the foreign minister, it's the prime minister to start with, but the foreign minister has a big word to say in this. So what Dr. Jaishankar, I think, has is both. He knows how to communicate and he knows how to take political decisions. And that's why he's, I think, a very successful foreign minister. So as a diplomat, you're constantly getting inputs from your country's government. Clearly. And you have to do certain things when it comes to the diplomats of other nations. Yes. In terms of if your government wants to talk to their government, the work actually happens through the diplomats. Yeah. So the main skill is communication skills. Exactly. And some form of writing, I'm assuming. Yeah. And you write back then to capital. I mean, you write
you write long reports saying that the Indian side looks at this problem in such and such way. Gotcha. So basically you receive and you write back home. Okay. And then you receive from home, they say instructions, go to the Indians, ask them to build up a partnership on green and sustainable development together with us, and then you go to them. Okay. That's So Dr. Jaishankar spent decades as a diplomat. And then he switched into becoming a politician because he possibly figured that, when I stay abroad, this is how people perceive my country. He learned certain things there, and now he's applying it to help the Modi government with governance, especially when it comes to foreign policy. Exactly. All right. Yeah. Okay. Now I'll let you break him down a little bit more. Have you ever chilled with him? I think chilling in your way, I would say no. But what we did was, when you sit, we had my foreign minister came, we had a lunch with him. And when you sit over lunch, then it can become very funny also. Really? He tells a couple of stories, which I'm not at liberty to share with you. No problem. But he has a huge experience and he can then be very, very insightful and funny at a time. So it is very entertaining and enlightening to sit with him at a dinner time. So I think Dr. Jaishankar is a very, very well respected foreign minister worldwide. I think he has a name, a household name, Dr. Jaishankar. So. His name comes up in the next PM conversation sometimes, like he's one of the dark horses. Is that so? Yeah. I'd say he's a dark horse for it. I don't know if he himself wants to do that. Well, let me tell you, as a diplomat, if you want to be something, rather not talk about it. The moment you throw your hat and say, I'm here, and the risk is that you become burnt or that they kick you out very early. So you have to be very, very careful on how to. So I haven't heard about that. That's for me the first time I hear, but I'm not surprised that he doesn't speak about it. So if you enjoyed this video, make sure you check out this playlist for more videos just like this. It's TRS Clips. क्या कुछ ना बोलूं मैं इनके बारे में, मतलब मेरा दिल करता है जब इनकी कोई वीडियो देखूं ना, तो जितना कुछ जानती हूँ, जितनी तारीफें बन पाती हैं, बन सकती हैं, बन पड़ती हैं, वो सब कर डाल। मेरा दिल इतना खुश होता है इनके बारे में बात करके, इनके बारे में सोचकर, इनके बारे में सुनकर, कोई वीडियो इनके बारे में देखकर। एक अजीम इंसान अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ ना, एक अजीम इंसान। और इतने अजीम इंसान कि इन्होंने जो कुछ भी किया है, मैंने जितनी भी मतलब जो वीडियोस देखी, जो भी इनके बारे में समझा, बेलॉस, कोई अपना हिडन इंटेंशन नहीं था कभी भी। सॉरी, एक वीडियो आपने देखी भी होगी, इससे पहले हमने देखी थी राजेश शंकर की, प्यार से समझा देंगे। तो चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को टैकल करना, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशंस ढूंढना प्रॉब्लम्स के, और सामने वाले से कम्युनिकेट कैसे करना। ठीक, आप यकीन करें इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको इस टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन होता है ना कि एक बंदा, अक्सर ऐसा होता था, हम इनकी वीडियो देखते थे, अम्मी ऐसे क्वेश्चन होते थे कि मैं ये कहती तो मुझसे जवाब नहीं बन रहा, ये क्या जवाब देंगे, और वो इतना खूबसूरत जवाब देकर निकलते थे कि मेरा दिमाग दंग रह जाता था कि कैसे आ गया दिमाग में, कैसे सोच लिया, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इनको पता है इनको कब क्या बात करनी है, इनको पता है इनको कब क्या बोलना है, इनको पता है सामने वाले को कैसे डील करना है। अब आप देखिए, एक कंट्री की बात नहीं है, ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज को वर्ल्ड में आप देखें कितनी कंट्रीज हैं, बहुत सारी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, अब है फॉरेन मिनिस्टर, ये कई सालों तक, जैसे मैंने भी बताया, कई डिकेड्स तक डिप्लोमेट रहे। ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये पॉलिटिशियन बाद में, पहले ही डिप्लोमेट रहे। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जनता जिसको वोट देती है और आता है वो इंसान सिलेक्ट करके जैसे मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं, कि वो वाले मिनिस्टर नहीं। इनको मोदी जी ने मतलब इनकी स्किल्स को, इनके टैलेंट को झांचा भापा, और उसके बाद वो इनको लेकर आए आगे। तो मैंने ये देखा कि ये जितने भी कंट्रीज में थे ना, डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, डिप्लोमेट भी थे, तो ये जितने भी कंट्रीज में थे, ये वहां जाते थे, सीखते थे, देखते थे। ये हर कंट्रीज को इतने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आपको पता है 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस है। यानी जब वो, मुझे हार्डली लग रहा है 18-20 साल के होंगे, तब से वो इस फील्ड में, तब से ठीक है। अगर वो 60 साल के नहीं है तो 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। अगर वो 70 साल के हैं तो
50 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे एग्जैक्टली उनकी एज याद नहीं है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं उनका एक्सपीरियंस सुनकर हैरान और परेशान हो गई थी कि एक बंदे का 40 साल का एक्सपीरियंस, एक मिनिस्टर जिसका 40 साल का एक्सपीरियंस हो, और एक मिनिस्टर, एक कंट्री का एक मिनिस्टर जो अभी महज 25-26 साल का हो। बिल्कुल। तो एक मिनिस्टर क्या बेचता होगा वो उसके सामने, आप ये सोचे। बिल्कुल। जिसकी उम्र से ज्यादा तो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनका- बोलते हैं ना तुम्हारी उनका उम्र से ज्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस मेरा है, तजुर्बा मेरा है, तजुर्बा बिल्कुल। है। तो वाकई एक ऐसा इंसान नहीं कहूंगी इनके बारे में कि जिन्होंने अपने आप को बनवाया। जिन्होंने अपने टैलेंट से, अपनी स्किल्स से, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैंने देखी, देशभक्ति बहुत है। ठीक। हम भी देशभक्त हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने उन लोगों के अंदर एक अलग लेवल देखा इस चीज का, एक अलग जुनून आप कह सकते हैं, अपने सही। मुल्क को लेकर क्रेजी होना ना, कि सबसे पहले अव्वलीन तरजीह मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की इमेज, मेरे मुल्क की इज्जत, मेरे मुल्क का वक़ार, मेरे मुल्क की डिग्निटी, इसके बाद कोई बात हो सकती है, सबसे पहले सबसे अव्वल फहरिस्त ये चीज है। ठीक है, जब भी कोई बात करते हैं आप यकीन करें वायरल हो जाता है, वो इंटरव्यू वायरल हो जाता है, वो जुमला उनका वायरल हो जाता है, और सिर्फ उनके देश के लोग उनको सराहें तो ये कह सकते हैं कि भाई जनता के बड़े प्रतीक है, बहुत फेमस हैं या बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन आप यकीन करें दूसरे कंट्रीज के लोग उनके स्टेटमेंट को सराहते हैं। सही। अच्छा, ये जर्मन एम्बेसडर थे, इनकी आपने अच्छा। खुशी देखी थी बातें करते हुए एस जयशंकर? हाँ, और मतलब वो ये भी तो कह रहे थे ना, आपने उनकी बातों के दरमियान ये देखा कि वो ये कह रहे थे कि एक मिनिस्टर के तौर पे, एक अच्छे मिनिस्टर के तौर पे उनकी एक छवि बन रही है, छवि बन गई है, और मतलब इस तरह से जैसे कि मिनिस्टर के लिए भी उनके बारे प्राइम में मिनिस्टर, सोचा जा रहा प्राइम है मिनिस्टर। कि उनको एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी लोग देखना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, बहुत 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 पसंद किया जा रहा है इनको, बहुत पसंद, जी। यानी कि ये बहुत वायरल हो गए, बहुत फेमस है। ठीक है, और इनके काम में मैं सारी बातों को एक जगह यकजा करूँ ना, अगर एक सेंटेंस में, इंसान का काम उसको मनवाता है, उसको इज्जत दिलवाता है। बिल्कुल। मैं तो आपसे पहले भी कहती हूँ कि देखिए इंसान अपने काम से जाना जाता है, अपने काम की वजह से उसका एक नाम होता है, एक मकाम होता है, एक मर्तबा होता है, इज्जत होती है। इज्जत होती है। समझे, जब आप कुछ करके दिखाते हैं, जब आप लोगों से मनवाते हैं, तो 4 आदमी फिर आपकी इज्जत करते हैं। और ये बात तो मैंने कई वीडियोस में कही है कि आप करवाते नहीं है, मतलब जबरदस्ती आप किसी से नहीं करवा सकते, डंडे के जोर पर। जी, इज्जत खुद ब खुद लोग आपकी करते हैं, बिल्कुल। आपके काम से, आपके किरदार से, आपकी बात से, समझे, बिल्कुल। आपके अमल से। अमल से, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आपके अमल से। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई जी। कि जर्मन एम्बेसडर ऐसे इतने खुश होकर उनकी बातें कर रहे हैं, इतने तारीफी जी। कलमात उनके लिए बयान कर रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि वाकई ये इज्जत कमाना आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान बिल्कुल, नहीं ये है, हर बिल्कुल किसी की आसान। इज्जत, मैं ये कहूंगी ये इज्जत जो है, जैसे पीएम जी हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी इज्जत आप देखें दुनिया में, मैं सिर्फ अभी तो मुल्क की बात ही नहीं करी, अभी मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, नहीं अब मैं डिफरेंट देशों की बात कर रही हूँ आपके सामने, सही। कि डिफरेंट जो कंट्रीज है वो आपको मान रहे हैं, वो आप कुछ कह रहे हैं तो वो 4 लोग आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कह रहे हैं सही कहा, हम भी सही इनके कहा, साथ हैं। हम भी इनके साथ कितनी हैं। बड़ी इज्जत की बात है, तो कितना बड़ा मुकाम है आपका, आप ये देखिए ना, वो एक ब्राइट बात कह रहे हैं ना, जिसमें वजन है। जिसमें वजन है, जो जिसमें कुछ अच्छाई है, कोई मुस्बत बात है, बिल्कुल ऐसे ही, समझे, इस बात को लोग तस्लीम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो समझे बहुत ही आप? बहुत ही बहुत ही उम्दा वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।